Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 15, The World's Best Dress of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. First one is the Wazir said that the weavers had brought a dash for the emperor, so it's option C, gift. वजीर ने कहा कि बुनकर यानी वीवर्स बादशाह के लिए एक उपहार लाए हैं. The emperor loved to wear new and expensive, option B, dresses. एम्परर यानी सम्राट को नई महंगी पोशाकें पहनना पसंद था. द एम्परर गेव अ पाउच ऑफ ऑप्शन ए गोल्ड कॉइन्स टू द वीवर्स एंड टोल्ड देम टू स्टार्ट देयर वर्क. एम्परर ने वीवर्स को सोने के सिक्के की एक थैली दी और उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए कहा. द डैश ऑप्शन बी वजीर. द वजीर वॉज आस्क्ड टू चेक ऑन द वीवर्स आफ्टर एवरी फ्यू डेज. वजीर को हर कुछ दिनों के बाद वीवर्स की जांच करने के लिए कहा गया. Everyone in the crowd was praising the emperor's dress except for the option C, वजीर. वजीर को छोड़कर भीड़ में हर कोई बादशाह की पोशाक की तारीफ कर रहा था. Next is answer these questions. Question 1. What did the emperor love the most in the world? बादशाह को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? Answer. The emperor loved to wear beautiful new expensive clothes. सम्राट को सुंदर नए महंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद था. Question 2. What kind of a dress did the weavers promise to make for the emperor? Weavers ने emperor के लिए किस तरह की ड्रेस बनाने का वादा किया था? Answer. The weavers said that they would make the best dress for the emperor. It would not be made of a common cloth and its thread would be specially dyed, and if anyone who was not good at his job would try to look at it, they would not be able to see it at all. Weavers ने कहा कि वो एम्परर के लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाएंगे. ये किसी आम कपड़े से नहीं बनी होगी और इसके धागे को खास तरह के रंग से रंगा गया होगा, और अगर कोई भी इंसान जो अपने काम में अच्छा नहीं होगा वो इसे देखने की कोशिश करेगा तो वह ऐसे नहीं देख पाएगा. Question 3. Why did वजीर not say that he could not see anything on the loom? वजीर ने ऐसा क्यों कहा कि उसे लूम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? Answer. The wazir did not say anything about the fact that he couldn't see the dress as he did not want to appear stupid and unfit for his job. वजीर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वो पोशाक नहीं देख सकता क्योंकि वो अपने आप को मूर्ख और अपने काम के लिए अयोग्य नहीं दिखाना चाहता था. Question 4. Why did the emperor hide the fact that he could not see anything on the loom? बादशाह ने ये बात क्यों छुपाई कि उसे लूम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? Answer. The emperor hid the fact that he could not see the dress because he did not want to appear stupid and unfit for his job. He did not want anyone to know about this. He feared that his enemies would take his throne away from him. एम्परर ने इस फैक्ट यानी बात को छुपाया कि वो ड्रेस नहीं देख सका क्योंकि वो मूर्ख और अपनी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं दिखाना चाहता था. वह नहीं चाहता था कि इस बात का पता किसी को चले. उसे डर था कि उसके दुश्मन उसका सिंहासन उससे छीन लेंगे. Question 5. Why did everyone in the street pretend to admire the emperor, knowing well that he was not wearing anything? ये जानते हुए भी कि उसने कुछ भी नहीं पहना था, सड़क पर हर किसी ने एम्परर की तारीफ करने का नाटक क्यों किया? Answer. The people looking at the emperor did not want to say that the emperor was not wearing any clothes as they did not want to offend him. लोग एम्परर को देखकर ये नहीं कहना चाहते थे कि एम्परर ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे. अब नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. Question 1. Who do you think was the most honest person in the kingdom? Give reason for your answer. आपके अनुसार किंगडम यानी राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन था? अपने उत्तर का कारण बताएं. The little boy was the most honest person in the kingdom. When the emperor walked down without any clothes on, everybody pretended to admire him and applauded his new dress out of fear. However, the boy was the only one who said to his father that the emperor was not wearing anything. छोटा लड़का राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति था. जब एम्परर बिना कपड़ों के नीचे चला गया तो सभी ने उसकी तारीफ करने का नाटक किया और डर के मारे उसकी नई कपड़ों की सराहना यानी तारीफ की. हालांकि वो लड़का अकेले था जिसने अपने पिता से कहा कि एम्परर ने कुछ भी नहीं पहना है. Question 2. What kind of a person was the emperor? Do you think he was fit to rule the kingdom? Give reason for your answer. एम्परर सम्राट कैसा व्यक्ति था? क्या आपको लगता है कि वो अपने राज्य पर शासन करने के योग्य था? अपने उत्तर का कारण बताएं. The emperor was a vain and foolish man. एम्परर एक व्यर्थ और मूर्ख व्यक्ति था. His love for expensive new dresses made him believe
the weavers who were trying to fool him and take advantage of his weakness for good clothes. महंगे नए कपड़ों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें वीवर्स पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था, जो उन्हें बेवकूफ बनाने और अच्छे कपड़ों के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे. Even when he saw that the dress they had made for him was invisible, he did not trust his own judgment and thought that he was being stupid and unfit for his job, as he could not see the dress. यहाँ तक कि जब उसने देखा कि जो ड्रेस उन्होंने उसके लिए बनाई थी वो इनविजिबल यानी दिखाई नहीं देने वाली थी, तो उसे अपने फैसले पर भरोसा नहीं हुआ और उसने सोचा कि वह मूर्ख है और अपनी नौकरी के लिए अयोग्य है क्योंकि वह ड्रेस नहीं देख सका. This shows that he was foolish and he did not have confidence in his own judgment and was unfit to be a king. इससे पता चलता है कि वो मूर्ख था और उसे अपने फैसले पर भरोसा नहीं था, वह राजा बनने के योग्य नहीं था. Question 3. When you ask your friends for advice, do you want to know what they really think or would you want them to say things that will please you? जब आप अपने दोस्तों से सलाह मांगते हैं तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वे रियलिटी में क्या सोचते हैं या क्या आप चाहोगे कि वे ऐसी बातें कहे जो आपको खुश करेंगी? When I ask my friends for advice, I would like them to give me the correct opinion about whatever I ask them. I would not like them to lie to me just to please me. Sometimes I might feel bad if I don't like their advice and answer, but at least I will know that I am not being fooled. जब मैं अपने दोस्तों से सलाह मांगती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैंने उनसे जो भी पूछा है वह मुझे सही राय दें. मैं नहीं चाहती कि वह सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मुझसे झूठ बोलें. कभी कभी अगर मुझे उनकी सलाह या जवाब पसंद नहीं आता तो मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन कम से कम मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है. The emperor wanted to impress the whole world with his fancy clothes. एम्परर अपने फैंसी कपड़ों के साथ पूरी दुनिया को इम्प्रेस करना चाहता था. Do you also like to wear new clothes to impress others? क्या आप भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं? What do you do with your old clothes that do not fit anymore? आप अपने पुराने कपड़ों का क्या करते हैं जो अब आपको फिट नहीं आते? Have you ever donated your clothes? क्या कभी आपने अपने कपड़ों को दान किया है? Discuss in the class how you can use old clothes more wisely instead of throwing them away. क्लास में डिस्कस करें कि आप अपने पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय ज्यादा बुद्धिमानी से कैसे यूज कर सकते हैं. Besides talking about their personal experience, the students could talk about donating old clothes to orphanages or to charities that take care of the needs of those in need. They could also say that old clothes could be recycled. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के अलावा बच्चे पुराने कपड़े अनाथालयों या जरूरतमंद लोगों की जरूरतों का ख्याल रखने वाली संस्थाओं को दान करने के बारे में भी बात कर सकते हैं. वे ये भी कह सकते हैं कि पुराने कपड़ों को रिसाइकिल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज. यूजिंग नाउन्स एज एडजेक्टिव्स. इन एक्सरसाइजेस में हम नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करेंगे, यानी विशेषता क्वालिटी की तरह करेंगे. लाइक द वर्ड ग्लास विच इज यूजुअली अ नाउन. जैसे कि ग्लास वर्ड जो है वो एक नाउन है, एक चीज है, उसका इस्तेमाल स्लीपर की तरह किया गया है जो यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. क्वेश्चन इज उन नाउन्स को अंडरलाइन करें जिनका इस्तेमाल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह किया गया है. द जैम इज इन द प्लास्टिक जार. जैम प्लास्टिक जार में है, तो जार तो है लेकिन कैसा? प्लास्टिक. शी प्लेस द पेपर टॉवल्स इन द कपबोर्ड. उसने कागज के तौलियों को अलमारी में रख दिया. सो टॉवल तो है लेकिन कैसे? पेपर. माई आंट मेड द वेजिटेबल स्ट्यू. मेरी चाची ने सब्जी का स्ट्यू बनाया. स्ट्यू तो बनाया, किसका? वेजिटेबल. द कंप्यूटर लैब हैज बीन रिपेंटेड. कंप्यूटर लैब का रंग रोगन किया गया है. सो लैब तो है लेकिन कौन सी लैब का? कंप्यूटर. प्लीज पास मी द ग्लू स्टिक. प्लीज मुझे ग्लू स्टिक पकड़ाएं. सो स्टिक तो है लेकिन कौन सी? ग्लू. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाईलाइटेड फ्रेज को बदलने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करें. आई हैड सम सूप मेड फ्रॉम बीन्स. बीन से बना हुआ सूप कुछ मेरे पास है. सो इट्स ऑप्शन ए, बीन सूप. माई ग्रैंडमदर इन कोलकाता हैज अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ रोजेस. कोलकाता में मेरी दादी के पास गुलाबों का एक सुंदर बगीचा है. सो इट्स ऑप्शन सी, रोज गार्डन, गुलाब बाड़ी.
रीता बॉट अ न्यू ओपनर फॉर कैन्स। रीता ने डिब्बों के लिए एक नया ओपनर खरीदा। सो इट्स ऑप्शन सी, कैन ओपनर। डोंट लीव योर बुक्स ऑन द टेबल इन द किचन। सो इट्स ऑप्शन सी, किचन टेबल। अपनी किताबें रसोई के टेबल पर ना छोड़ें। तो सेंटेंस होता है जो पूरा होता है, फ्रेज होता है आधा, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेज। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस जिसमें हम पढ़ेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर होता है विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये टेंस उन एक्शंस की बात करता है जो फ्यूचर में दिए गए समय से पहले ही कंप्लीट हो जाता है या कंप्लीट कर दिया जाता है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए गए हैं तो आपको फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म लगानी है। बाय द टाइम यू रिसीव दिस लेटर आई वुड हैव लेफ्ट द कंट्री। जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं देश छोड़ चुका हूँगा। सो लीव होता है छोड़ना। बिफोर आई एम 15 आई विल विजिट ऑल द हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। 15 साल के होने से पहले मैं भारत के सभी हिल स्टेशन का दौरा करूंगा। बिफोर आई रीच द वेन्यू द चीफ गेस्ट विल हैव डिलीवर्ड हिज स्पीच। मेरे कार्यक्रम जगह पर पहुंचने से पहले चीफ गेस्ट अपना भाषण दे चुके होंगे। आई वुड हैव डन माई होमवर्क बाय इवनिंग। मैं शाम तक अपना होमवर्क कर चुका होता। कार्तिक वुड हैव रीड द लेटर बाय द टाइम यू रीच होम। जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक कार्तिक लेटर पढ़ चुका होगा। By the next weekend, I would have finished writing my poetry book. अगले हफ्ते तक मैं अपनी पोइट्री बुक लिखना खत्म कर लूंगा। Next is pronunciation. Up next is listening. Listen to this conversation between two people and answer the questions. दो लोगों के बीच की बातचीत को सुने और आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का। Question 1. Name the two people who are talking. उन दो लोगों के नाम बताएं जो बात कर रहे हैं। आंसर, मोनीश एंड आनंद आर टॉकिंग टू ईच अदर। मोनीश और आनंद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई वर द पुलिस इन द बिल्डिंग? पुलिस इमारत में क्यों थी? आंसर, द पुलिस आर इन द बिल्डिंग इन्वेस्टिंग अ थेफ्ट। पुलिस इमारत में चोरी की जांच कर रही थी। क्वेश्चन 3, हु सॉ द फैमिली इन द 4th फ्लोर लीव टाउन? चौथी मंजिल पर रहने वाले परिवार को शहर छोड़ते हुए किसने देखा? Thief saw the family leave the town. चोर ने परिवार को शहर छोड़ते देखा। क्वेश्चन 4, What did the thief take? चोर क्या ले गया? आंसर, the thief took several lakh of rupees and a lot of jewelry. चोर कई लाख रुपए और ढेर सारे गहने ले गए। क्वेश्चन 5, What are the two things that the thief must have known? वे दो कौन सी बातें हैं जो चोर को मालूम होंगी? The thief must have known about the cash and the jewelry that was in the flat and also the fact that flat owners were out of town. चोर को फ्लैट में मौजूद नकदी और ज्वेलरी के बारे में पता होगा और ये भी पता होगा कि फ्लैट मालिक शहर से बाहर हैं। Next is speaking. Choose a section from the play The World's Best Dress. Take turns, choose characters and enact the play in class. ये जो वर्ल्ड बेस्ट ड्रेस आपका स्टोरी है, प्ले है, इसको क्लास में भी वैसे ही प्ले एनेक्ट करें। अब नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। सो ये आपको एक स्टोरी दी गई है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं है, आपको इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। सबसे पहले उसने एक जोड़ी ट्राउजर पहनी। उसे ट्राउजर पसंद नहीं आई और उसने उसे दुकानदार को वापस कर दिया। फिर उसने एक रोब आजमाया जिसकी कीमत ट्राउजर के इक्वल ही थी। मुल्ला नसरुद्दीन उस ड्रेस से खुश हुआ और वो दुकान छोड़ने लगा। दुकानदार ने कहा, आपने रोब के पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने रोब के बदले आपको ट्राउजर दे दिया। ये जवाब मुल्ला नसरुद्दीन ने शॉपकीपर को दिया। हाँ, लेकिन तुमने ट्राउजर्स के भी पैसे नहीं दिए हैं, शॉपकीपर बोला। लेकिन मैंने ट्राउजर खरीदा ही नहीं है, मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ और मैं तुम्हें उस चीज के लिए पैसे नहीं दूंगा जो मैंने खरीदी ही नहीं। Next is writing. A dialogue is usually a conversation between two or more people. दो या दो लोगों के बीच की बातचीत को डायलॉग कहा जाता है। राहिला ने पिछले हफ्ते ही एक ट्राउजर लिया है। जब उसने उसे धोया वो श्रिंक हो गया और उसका बटन भी निकल आया। एक डायलॉग लिखिए राहिला और शॉपकीपर के बारे में, शॉप असिस्टेंट। सो ये स्टार्टिंग डायलॉग है, इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी।
दुनिया के अलग अलग देशों की इंटरेस्टिंग ड्रेसेस यानी कॉस्ट्यूम की पिक्स इकट्ठी करें, उन्हें आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं और दीवार पर एक बड़ा कोलाज बनाएं। कुछ इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम्स हैं साड़ी, किल्ट्स, गू, ट्रैच. Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.